نکالے میں ساتھ پڑھیں عبرانیوں اس کا 11واں باب. ٹاپک ہمارا نوٹ کر لیں جی, فیتھفل اینڈ دی انفیتھفل, ایماندار اور غیر ایماندار. اس پہ آج ہم سیکھیں گے. آتا بھی پڑھیے گا پلیز. جی پہلی آیت سے پڑھتے جائیں. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں, یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. ایمان ہی سے حابیل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی, اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی, کیونکہ خدا نے اس کے نظروں کی بابت گواہی دی, اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے. ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے, اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا, کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا. آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. سارے زور سے کہیں آمین. پالوس رسول عبرانیوں کو خط لکھتے ہوئے ایمان کے بارے میں بتا رہے ہیں. کس کے بارے میں جی؟ ایمان کے بارے میں. عبرانیوں کے کلیسیا کو کہتے ہیں اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا کیا ہے جی؟ اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ہم انسان جو اس دور کے ہیں, جنہیں جو ایماندار نہیں ہیں, جنہیں خدا کی پہچان نہیں ہے, وہ دیکھی چیزوں پہ اعتماد کرتے ہیں. وہ کون سی چیزوں پہ جی؟ گڈی نظر آوے گی چلاواں کار, ویری گڈ گڈی, ڈالر چلو جیب میں چھوڑ کے بہو یس ڈالر میرے کو بولنے. ہاں ہم دیکھی چیزوں پر کیا رکھتے ہیں جی؟ ایمان رکھتے ہیں. لیکن جسے خدا کی پہچان مل گئی ہے, جسے خدا شناسی مل گئی ہے, وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. وہ کون سی چیزوں پر؟ اندیکھی, جسے اس نے نہیں دیکھا وہ ان چیزوں کی تلاش کرتا ہے اور ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. اس نے لکھا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں. کس سے جی؟ ایمان ہی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ معلوم کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, معلوم کرتے ہیں ایمان ہی سے. کس سے جی؟ ایمان ہی سے. لکھا ہے ایمان ہی سے معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. آمین. ایمان سے. کس سے معلوم کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھا کہ روشنی کس نے بنائی ہے؟ کسی نے دیکھا یہ عالم کس نے بنایا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ایمان ہی سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ خدا کے کہنے سے یہ سارے عالم بنے ہیں. خدا کے کہنے سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں. ایمان ہی سے. کس سے جی؟ ایمان ہی سے. بات ایمان پہ ہو رہی ہے. ایمان ہی سے ہم ان ساری چیزوں کو, جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں, پودے ہم دیکھتے ہیں, پہاڑ ہم دیکھتے ہیں, ایمان سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے. تو آگے کہ کہنے سے بنے ہیں, یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے. پھر پالوس رسول عبرانیوں کو کہہ رہے ہیں نا, جو نظر آتا ہے اندیکھی چیزوں پر بھی, جو عالم بالا کی چیزیں ہیں. جو کہاں کی چیزیں ہیں جی؟ عالم بالا کی چیزیں. سانو عالم بالا کی چیزوں میں کیا سمجھ آئے؟ ایمان نہیں رکھتے. اسی نے ویکھی ہوئے اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو تو پھر سمجھ آوے. اندیکھی چیزیں جہاں خدا خود ہمارے ساتھ ہوگا, جہاں ہم اس کی حضوری میں ہر وقت رہیں گے, اس کی بندگی اور پرستش کریں گے, جہاں سورج کی روشنی کے ہم محتاج نہیں ہوں گے, جہاں کھانے کے لیے پریشانی نہیں ہوگی, اس جگہ کی فکر ہم نہیں کرتے. آمین. اس جگہ کی. اور ایماندار جو ہے, جسے پہچان مل جاتی ہے, وہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے. ان چیزوں کی تلاش. لکھا ہے
जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजारी। ईमान ही से, ईमान से, ईमान की बात हो रही है जी। आगे उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया था तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है, अब तक कलाम करता है, क्योंकि उसने ईमान से, ईमान हमेशा क्या रहता है, जिंदा है, ईमान से कलाम करता है। ईमान ही से हनूक क्या कर लिया गया, कैसे उठा लिया गया, जिंदा। ईमान से, ईमान ही से हनूक को भी खुदा ने उठा लिया, क्योंकि वो ईमानदार था, ताकि मौत को ना देखे, क्योंकि मौत को कितने शख्स ने जिन्होंने मौत का मजा नहीं चखा, सेमिनार सीखेंगे हम, बताए कोई भी। दो शख्स थे जी, एलिया और हनूक, जिन्होंने मौत का मजा, जिन्हें जिंदा उठा लिया गया। इसलिए आज हम हनूक का जिक्र बाइबल में पढ़ रहे हैं कि ईमान ही से उसे जिंदा उठा लिया गया। मौत को ना देखा, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था, इसलिए कि उसका पता ना मिल सका, क्योंकि उठाए जाने से बेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया है। आमीन। ये खुदा को क्या है जी, ये खुदा को पसंद आया कि वो मुझ पर ईमान लाए, उन्होंने मुझ पर ईमान रखा, उन्होंने ये जान लिया कि खुदा जिंदा है, बरहक है, वो जिंदगी देता है। ये खुदा को क्या आया, पसंद आया। आगे वाली बात ये खुदा को क्या है जी, आगे वाली आयत हमें छठी बताती है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन जी। खुदा को ये चीज पसंद आई कि जो कोई ईमान लाए खुदा उसे पसंद करता है। खुदा उसे क्या करता है जी, तो जड़ा ईमान ना लावे खुदा उनको पसंद करता, इसलिए देखा है। और बगैर ईमान तो उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, और अपने तालिबों को क्या करता है जी, अपने तालिबों को क्या करता है, ईमान ये रखना चाहिए कि अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया तो अब्राहम इस बात पर ईमान लाया कि मेरा बुलाने वाला सच्चा है, मेरा बुलाने वाला पाक है, मेरा बुलाने वाला वादों का सच्चा है, मेरा बुलाने वाला जो कहता है वो करता है। आमीन। तो आगे पढ़ेंगे हम, लिखा है ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए क्या बनाई थी। अब नूह ने भी देखे ईमान से, बारिश का कोई असरार नजर नहीं आ रहे, लेकिन उससे खुदा ने कलाम किया कि बारिश होगी, गुनाह बदी बहुत बढ़ गई है, मैं इस दुनिया को फना कर दूंगा, तू क्या कर, तू रास्तबाज शख्स, मुझे ईमानदार शख्स नजर आया है, तू मुझ पर ईमान रखता है, तू कश्ती बनाना की कर दे। तो उसने क्या किया, बनाना शुरू कर दी। लिखा है क्योंकि वो इस बात पर ईमान रखता था कि खुदा ने जो कुछ कहा है वो जरूर ऐसा ही करेगा। ईमान ही के सबब से उन्होंने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, नजर नहीं आ रहा कि बारिश आएगी, नजर नहीं आ रहा कि ऐसा होगा, लेकिन ईमान से खुदा पर ईमान रखते हुए उसने कश्ती बनाना शुरू कर दी। आमीन। जब कश्ती बनाना शुरू कर दी तो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को क्या ठहराया, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया। वो कहता रहा तौबा कर लो, वो कहता रहा खुदा बारिश से तुम्हें मारने को है, तुम्हारी बदियां बढ़ गई हैं, तुम्हारे गुनाह बढ़ गए हैं, आओ खुदा पर ईमान लाओ और बदियों से किनारा करो और मसीह पर ईमान लाकर तौबा करो, वो तुम्हें बचाने के लिए तैयार है। लेकिन लोग ना आए उसके पास, खुदा पर ईमान ना लाए, बल्कि उल्टा नूह को मजाक करते रहे, उल्टा नूह से मजाक करते रहे, उसे ताना जानी के तुरे को पता नहीं, लेकिन वो खुदा की इन बातों पर ईमान लाया।
देखिए कश्ती बनाई जिससे उसने दुनिया को मजे उठाया और उसने रास्तबाजी का बारिश हुआ जो ईमान से है। कौन सी रास्तबाजी का बारिश हुआ जी? बारिश हुआ जो ईमान से है। किससे है? ईमान से। कोई शख्स अपने अमाल से रास्तबाज नहीं ठहर सकता जी। कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन ईमान से खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद हम रास्तबाज बनते हैं। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर, क्या मानकर? क्या माना उसने? हुक्म मानकर क्या किया? उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना किया गया। ईमान ही से उसने मुल्क माऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है। क्या है जी? गोया इस तरह से खेती बाड़ी करता था, कहता था है ये गैर मुल्क, मेरा असल देश तो आसमान है। मेरा असल देश तो कौन है जी? आसमान है। ये ईमान बुलाया और अपने बाप का घर छोड़कर खुदा के पीछे पीछे चल पड़ा। लिखा है बदोबाश की गैर मुल्क है और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उस वादा के वारिस थे, जिनमें सुकूनत की, खैमा में सुकूनत की, क्योंकि उस पायदार शहर का उम्मीदवार था। कौन से शहर का जी? पायदार शहर का, जो हाथ का बुनाया हुआ मकान नहीं, जो हाथ का बुनाया हुआ शहर नहीं, उस शहर का वो मुंतजिर है, मुश्ताक है। अब्राहम उस शहर का, उस घर का, उस जगह का आरज़ूमंद है, मुश्ताक है, वहां रहना चाहता है। वो इन चीजों से दिल नहीं लगाता। ये चीजें बुरी नहीं है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई ये चीज हमें बताती है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी क्या करो जी? तो ये चीजें तो चुंगे जी मिल जाएंगी। हम इन पे जोर करते हैं, इन पे फोकस करते हैं, हम उल्टी डायरेक्शन पे चलते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हम इनको ढूंढते हैं, उसको नहीं ढूंढते। जिन्हें समझ आ जाती है, जो ईमानदार है, वो पहले उसे ढूंढते हैं, खुदा उन्हें फिर सब कुछ दे देता है। अब्राहम के पास कसरत से सोना, चांदी, मवेशी, खेत, जिस भी बंजर जमीन में वो फसल उगाता, वो इतनी फसल होती कि कमी न रहती, क्योंकि पहले उसने खुदा की बादशाही को ढूंढा, पहले वो खुदा पर ईमान लाया। और जब कोई खुदा पर ईमान लाता है, खुदा भी उसके लिए रास्तों को फिर हमवार कर देता है, फिर किसी चीज की कमी। तो ईमान ये है जी कि हम खुदा के वादों पर उसे सच्चा जाने, उसकी पहचान करें कि वो अपने वादों में सच्चा है और अपने वादों में देर नहीं। मसीह पर भी हमें ईमान लाना चाहिए। आए एक हवाला निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। ये दूसरा पॉइंट है मसीह पर ईमान। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 8वां बाब और 10 आयत। आज बात की 10 आयत है जी। लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में। आखिर भी पढ़ो जरा, मैं थोड़ा थक रहा हूँ, बूढ़ा आदमी है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया। यीशु ने ये सुनकर क्या किया जी? ताज्जुब किया। जो पास हम जिक्र कर रहे थे, ये सूबेदार का वाकया है। यीशु ने 2 जगह पे ताज्जुब किया है। कितनी जगह पे जी? 2 जगह पर। ईमान के बानी ने, जो ईमान का बानी है, उसने जब इसका ईमान देखा तो ताज्जुब किया कि ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। ऐसा ईमान। तो कहता तू मुंह से इतो ही कह देगा तो मेरा सूबेदार क्या पा जाएगा, मेरा नौकर, मेरा मुलाजिम क्या पा जाएगा। ये है ईमान। इसे ईमान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? असल जब तक जाके गलबात नहीं होगी फिर किस गल होगी। तो ये देखें जी, पढ़िएगा। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया। यीशु ने ये सुनकर क्या किया जी? ताज्जुब किया। और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे क्या कहता हूं? मैं तुमसे क्या कहता हूं? मैं तुमसे क्या कहता हूं? मैं तुमसे सच कहता हूं जी कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया जी। और मैं तुमसे कहता हूं बतेरे
और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही के ज़ियाफत में शरीक होंगे। मगर बादशाही के बेटे, लेकिन सुनिएगा, गौर कीजिएगा, लेकिन बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में, जो ईमान नहीं लाए, ईमान से रास्तबाजी मिलेगी, ईमान से आसमान मिलेगा, ईमान से आलम बाला मिलेगा, आसमान से खुदा की हजूरी मिलेगी। जो ईमानदार हैं वो इस बात को जान लें कि ईमान ही से वो खुदा के पास महफूज है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और एक और हवाला निकालें, इमाल 20:21। हवाले 20:21। मसीह पर ईमान लाना, ये मसीह पर सूबेदार ईमान लाया जी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं, और खुदा यीशु मसीह खुदा है जी। जी, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू, बल्कि यहूदियों और किनके जी? यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा, क्या देता रहा जी? गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना क्या है जी? क्या करना है जी? चाहिए। ईमान लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? चाहिए कि हम ईमान लाएं कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाजा है, यीशु के बगैर कोई हमेशा की जिंदगी दे नहीं सकता, और किसी के पास हमेशा की जिंदगी है ही नहीं। आमीन। सिर्फ जिंदगी हमेशा की है तो वो खुदा के बेटे यीशु नासरी के पास है। अगर हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो ईमान से यीशु के पास आए और कहे यीशु तू राह है, हक है, जिंदगी है, और हम जिंदगी के लिए और किसके पास जाएं? पास बता रहे थे बड़े झूठा मुद्दा नहीं मानते रहने, ऐसे अपने अपने इस हिसाब ना तस्वीर बना लेना, खुदा इंजदा चोरी करिए, चिकारी करिए, जना करिए, नहीं, खुदा हमारी हिफाजत करता। नो, वो खुदा, वो गुनहगार खुदा तो नहीं है। वो बदी कलाम तो कहता है, वो बदी को देखकर क्या करता है जी? बदी को देखकर खुश होता है? नो, वो तो बदी को देखकर कभी भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो खुद पाक है, वो खुद। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमारे खुदा की एक बात बड़ी कमाल की बात है, बाकी जितने भी पैगंबर और क्या कहना चाहिए लोगों के देवता हैं, जितने भी जिनके खुदा हैं, वो खून लेते हैं। वो क्या करते हैं जी? खून। लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह खुद खून देकर अपने बाप के पास गया और कहा मैंने अपने लोग का फिदिया दे दिया है। हमारा खुदा खुद खून देता है, वो हमारी पालना करता है, और फिर हमें कहता है ऐसे ईमान रखकर मेरे साथ चलो जी। अब रूह के वसीला से, रेफरेंस बहुत है लेकिन मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगा। अब तीसरा पॉइंट, रूह के वसीला से ईमान। किसके वसीला से? रूह के वसीला से जी। निकालिएगा पहला कुरिन्थियों, उसके बाद में बाप की 9 आयत। अब तो भी तुम फटाफट काट के ना पढ़ते हो। पहला कुरिन्थियों 12:9। किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी एक रूह से शिफा, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, देने की क्या मिली है जी? तौफीक जी। किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को रूहों का इम्तियाज, और किसी को तरह तरह की जुबानें, और किसी को तरह तरह की क्या है जी? जुबानें। ये रूह काम करता है। हमें रूह खुदा की क्या कराता है जी? पहचान कराता है। वो हमें इम्तियाज देता है, हम रूहों को परखते हैं। इसलिए रूह कुदस का होना अशद जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा होगा, मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे अंदर होगा, जो रूहों का इम्तियाज तुम्हें बताएगा, जो तुम्हें चलना सिखाएगा, तुम्हें जीना सिखाएगा, तुम्हें जोर देगा, तुम्हें खुदा की तय की बातें दरियाफ्त करके देगा, हिकमत की बातें, दवाई की बातें ता करके देगा। आगे ईमान जरूरी है। चौथा पॉइंट मत्ती 23:23 निकालिए। इसी मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 23वें बाब की 23वीं आयत। ईमान जरूरी है। ईमान क्या है जी? जरूरी है।
23 ऐ या रियाकार फकीरों और फरीसियों, क्या लिखा जी? ए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर दायरे देते हो, हाँ, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ, और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। खुदा यीशु मसीह या फकीरों फरीसियों को कह रहे हैं कि तुम ये छोटी छोटी बातें इन्हें बड़ा ध्यान में रखते हो, लेकिन खुदा यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि छोटी बातों को छोड़ देना। आगे जाके पढ़े तो इसकी तफसीर यूं है कि वो कहता है ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। हमें ये भी करना है और वो भी छोड़ना। फकीर फरीसी खाली जड़ी अपनी मतलब की गल जिसों ਨੂੰ बड़े ध्यान ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, लेकिन जो अच्छी बात थी, बड़ी बात थी, कहते नहीं की करना, चलो इतने ज्यादा मसला देना पड़ेगा, इन्हें छोड़ो, बड़ा निके निके गल्लां कर देते थे। यीशु का अफसोस तुम पर, ये भी ना छोड़ते और वो भी जरूर करते। इसलिए लिखा है, ऐ रियाकारों फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने और सौंफ और जीरे पर तो दया की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातें यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लेकिन लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। यीशु मसीह की तालीम है जी, हमने कोई भी हुक्म उसका छोड़ना नहीं। कुछ लोग आने नहीं, चले इन्ना वो कर लो, इन्ना छाड़ो, खैर कोई गल नहीं, यार तुसी वो करना सी, वो भी करना है, भी कर, अपना खुदा सी बना लेना। खुदा ने उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते, खुदा को हम अपनी फकीर फरीसी में खुदा को अपने हिसाब से चलाना चाहते। यीशु ने उनसे कहा, फकीरों फरीसियों, तुम पर अफसोस। तुम पर क्या जी? अफसोस। कहते ये तुम्हें ये भी करना चाहिए था और वो भी छोड़ना नहीं चाहिए था। तुमने ईमान को तो छोड़ ही दिया है। ईमान में कोई, मैं कहता हूं यूं कि कोई हिसाब किताब नहीं होता। ईमान तो फिर उस पर रखा जाता है जो कादिर है, जो कादिर मुतलक है, जिसने हर एक चीज बनाई है। अरे वो कसरत से देगा और बेहिसाब देगा। आमीन। हम उसको कूजे में बंद करते हैं। हमारा खुदा अनलिमिटेड खुदा है। कौन सा खुदा है जी? सारे बैंक का लिखे अंदर लिमिटेड बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, फैसल बैंक लिमिटेड, तो देख लो जितने बैंक, किसी का आगे लिखा अनलिमिटेड बैंक लिखा किसी का आगे, लेकिन हमारे खुदा का बैंक अनलिमिटेड है। आमीन। उसने यूसुफ को जब बरकत दी तो बेहिसाब दी, अनकाउंटेबल चीजें जिन्हें कोई काउंट नहीं कर सकता। हमारा ईमान का लेवल वो नहीं है, हमारा ईमान वहां तक पहुंचा नहीं है। अब्राहम का ईमान वहां तक पहुंचा, नूह का ईमान वहां तक पहुंचा, मूसा का ईमान वहां तक पहुंचा। वो खुदा पर ईमान लाए और खुदा ने जमीन की इंतहा की चीजें उन्हें दी जो गिनी ही नहीं जा सकती थी। आमीन। आमीन। इसलिए ईमान रखें कि हमारा खुदा सच्चा है, वो बरहक है, उस पर ईमान रखें, आपकी जिंदगी में अजीब और जलाली काम करेगा। इसलिए ईमान जरूरी है। ईमान में कायम रहना, पहला ग्रंथियों उसका 2:5 आयत। ईमान में कायम रहना जरूरी है। ईमान में कायम रहना, सारे मेरे साथ के, ईमान में कायम रहना जरूरी है। ईमान के बगैर तो गल ही नहीं बनेगी। हमने पढ़ा है इब्रानियों खत में, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना लो, गल ही मुक गई तो अगे फिर केड़ी गल रह जी। ताकि तुम्हारा ईमान, क्योंकि क्या लिखा जी? ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत पर है। तुम्हारा ईमान बल्कि लिमिटेड चीजों पर नहीं, तुम्हारा ईमान अनलिमिटेड खुदा पर है। हालेलुया। तुम्हारा ईमान अनलिमिटेड खुदा पर है जिसकी कोई हदूद नहीं है जी। हम उसे हदूद में लाते हैं, हम उसे कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं, हम अपने हिसाब से खुदा बना लेते हैं। हमारा खुदा अनलिमिटेड खुदा है। फिर पढ़ना है जरा तो भाई, ताकि तुम्हारा ईमान, हाँ जी क्या लिखा है? पढ़ो जोर से, सारे सुनो जरा, क्या लिखा है? ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर
इंसान की हिकमत पर नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत पर। कि खुदा जहां नहीं बोलता वहां से काटता है, हमारा खुदा जहां नहीं बखेरता वहां से जमा करता है। यही तो खुदा है, यही तो खुदा है, यही तो खुदा है, यही तो खुदा है, यही तो ईमान है कि हमारा खुदा नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल देता है। आमीन। ये ईमान रखें। आमीन आमीन। फिर ऐसा आयत पढ़ो जरा। ईमान में कायम रहना जरूरी है जी, ताकि तुम्हारा ईमान, सुन ले, नोट कर ले, ज़हन नशीन कर ले कि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत पर है। आमीन। खुदा की कुदरत पर है, जो मुर्दे को हुक्म देता है, ऐ लाज़र, ऐ लाज़र, कब्र से बाहर निकला। लाज़र कफन समेत उसके कदमों में आ जाता है। हम उस खुदा की कुदरत की बात कर रहे हैं, हम उस खुदा पर ईमान रखने की बात कर रहे हैं। जो कोई उस पर ईमान रखता है उसकी जिंदगी में जलाली काम होते हैं। आमीन। ईमान में कायम रहना क्या है जी? जरूरी है। ईमान के हथियार, आगे पढ़े एक 7वां पॉइंट, छठा ईमान के हथियार के इफिसियों 6:16। इफिसियों 6:16। आप भाई ये पॉइंट है हमारा ईमान के हथियार, छठा पॉइंट है। इफिसियों 6:16। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, सुने जी, और उन सब के साथ ईमान की किसकी सिपर लगानी है? ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। क्या रहे जी? कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको जी? आमीन आमीन। इसलिए ईमान के हथियारों को बांध लो और दुश्मन को ऐसे शिकस्त दो, ऐसे शिकस्त दो कि फिर उसको तुम्हारे पास आने की जरूरत ना हो। हमें वो जान जाए कि हम मसीह मसलूब की बात कर रहे हैं, हम उस मसीह की बात कर रहे हैं जिसने उसके घर में आके उसे कुचला, मारा और कहा, ऐ मौत तेरा डंग। आमीन। हम उसकी बात कर रहे हैं जी। आगे है, आप आगे 7वां पॉइंट, ईमान से दुनिया मगलूब हुई। मगलूब का मतलब है ईमान ही से दुनिया पर हम गलबा पाते हैं। कैसे पाएंगे जी? हम जिस्म से, अपनी ख्वाहिशों से दुनिया पर गलबा नहीं पा सकते। ईमान से, मसीह पर ईमान लाने से हम दुनिया पर गलबा पा सकते हैं, में इनके दुनिया पर मगलूब हो सकते हैं जी। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और 4 और 5 है। पहला यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब और 4 और 5 आयत। मिला? ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो। तुम किससे हो? खुदा से हो, और उन पर गालिब आकर। मैंने पहले कहा कि मगलूब का मतलब है गलबा पाना। मगलूब का क्या मतलब है जी? गलबा पाना। अगर आप दुनिया पर गालिब आना चाहते हैं, अगर आप दुनिया को मसीह की खुशखबरी देना चाहते हैं, अगर आप मसीह के पास दुनिया को लाना चाहते हैं, तो फिर दुनिया पर आपको गलबा पाना जरूरी है। आमीन आमीन जी। तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो कोई तुम में है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। वो उससे बड़ा है। उसने दुनिया में
इब्लीस को शिकस्त दी और बनी नूं इंसान का कुफारा देके वापस उसको अपने पास बुलाया। हम उस खुदा की बात कर रहे हैं और हमें उस पर ईमान रखना है। ईमान से दुनिया पे हम मगलूब आ सकते हैं, गलबा पा सकते हैं। आगे 8वां पॉइंट, ईमान से जीते रहना। ईमान से जीते रहना। मेरा बंदा ईमान से पढ़ो जरा, ईमान से जीते रहना। रोमियो पहला बाप उसकी 17 आयत। रोमियो पहला बाप उसकी 17 आयत। ईमान से जीते रहना। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से है और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन आमीन। ईमानदार किससे जीता रहेगा? ईमान से। अब्राहम इस बात पर ईमान लाया कि मेरा खुदा हमेशा की जिंदगी का खालिक और मालिक है, वो हमेशा की जिंदगी उसके पास है, इसलिए उसने अपने बाप का घर छोड़ दिया और खुदा के पीछे चल पड़ा। लेकिन जरूरी है कि आवाज खुदा की होनी चाहिए। आजकल ऐसी अमेरिका दिखावे के टुर पैने और कहने खुदा ने मेरे से कलाम किया है। अमेरिका का कीता, अफगानिस्तान का नहीं कीता। अमेरिका बड़ा खाब नजर आए, अच्छे अच्छे उत्थे मैं पहाड़ वेखे सन, बड़े अच्छे पहाड़ लग रहे सन, सर्दी सी, मौसम ठंडा सी, बस वही दिखाता है तुम्हें। अरे खुदा तो अपने बंदों को, रसूलों को उसने वहां भेजा जहां अंजील की जरूरत है। अगर हम ईमानदार हैं तो फिर हम वहां जाएंगे, फिर हम कहेंगे खुदावंद हम वहां जाना चाहते हैं, हम वहां खिदमत करना चाहते हैं जहां आज तक तेरा कलाम नहीं पहुंचा। तेरा कलाम हर जगह पहुंचे ताकि तू छेती छेती आवे, तैसी भी हवा रोड के तेरा इस्तेमाल करिए, तेरा दुनिया नु छड़ के तेरे को रहिए। आमीन आमीन। ये है असल ईमानदार। असल दुनिया नाल दिल लाल है बाबा, डॉलर गड्डियां सारा कुछ आ रहे हो, सानू की चाहिए उत्ते पता नहीं मिले ना मिले, आगे तक पढ़ा के उत्ते की मिलना है, सानू मिलना की है। आगे चले, आगे कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा जी? ईमान से जीता। मेरा बंदा किससे जीता रहता है जी? ईमान से जीता है। आगे 9वां पॉइंट, ईमान से खुदा के फर्जंद हम बनते हैं। ईमान ही से खुदा के क्या बनते हैं जी? फर्जंद बनते हैं। इसके लिए यूहन्ना पहला बाप और उसकी 12 आयत खोले। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाप और उसकी 12 आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, लेकिन जितनों ने उसे क्या किया जी? लेकिन जितनों ने उसे, सुने कंडीशन ये है, बात समझने की ये है कि जितनों ने उसे, जितने उस पर ईमान ले आए, उसने उन्हें खुदा के क्या बना लिया जी? हक बख्शा। उन्हें जो उस पर ईमान लाए, गल ईमान नाल बन गया, नहीं लगे फिर वो तो फरजंदा फरजंदियत नजर ना आवे और दावा कि हम फरजंद हैं, नो, झूठ है ये। फरजंदियत नजर आनी चाहिए हमारे कामों से, किरदार से, गुफ्तगू से, तो हम फरजंद हैं। तो अगर अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे, ईमान उस लेवल तक नहीं पहुंचा, उसके हुजूर झुकने की जरूरत है, उसके हुजूर में ठहरने की जरूरत है, उसकी हुजूरी में आने की जरूरत है। कहे खुदा मुझे जिस तरह तेरे फरजंद होते हैं, मैनू में तेरी फरजंद बना ले, मैं भी तेरा फरजंद बनना चाह। कभी दुआ कीती रहे हम करते खुदा अमरीका डॉलर कदों आउणगे, भेज छेती भेज, मैं बहाना लोग यस यही बहाना, मैं और कुछ नहीं बहाना। अरे यीशु मुझ में से नजर आए, अंधे देखे, लंगड़े चले, मुर्दे जिंदा हो, ताकि यीशु का नाम इज्जत और जलाल। यह ईमानदार जो यीशु को पेश करते हैं, जो यीशु को बयान करते हैं। आमीन। तो इसलिए क्या हमने पढ़ा जी? खुदा के फर्जंद ईमान से हम बनते हैं। आगे 10वां पॉइंट, ईमान से रूह को हासिल करना। ईमान से रूह को हासिल, रूह को कैसे हासिल किया? आगे इतने 35 है,
اس لیے ہم نے ایمان سے روح کو حاصل کرنا ہے، اور روح کی اشد ضرورت ہے ہمیں، روح کے بغیر ہم ادھورے ہیں جی۔ ایمان ہی سے روح کو حاصل کرنا، اعمال 11:17، اعمال اس کا 11واں باب اور 17۔ جی عاطف بھائی، بس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی، سنیں جی کیا لکھا ہے جی، بس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر چپ رہے، خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ ہاللویا! کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کلام کہتا ہے وہ کسی کی ہلاکت، وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص روح سے معمور ہو، ہر شخص توبہ کرے، ہر شخص بچ جائے، ہر شخص ایماندار بن جائے۔ آمین۔ جی آگے 11واں پوائنٹ، ایمان سے شفا ہم پاتے ہیں۔ ایمان ہی سے ہم کیا پاتے ہیں جی؟ شفا پاتے ہیں۔ ایمان سے ہم شفا پاتے ہیں، ایمان سے ہم اپنے گناہوں کی ہمیں معافی ملتی ہے، ایمان ہی سے ہم روح کو حاصل کرتے ہیں، ایمان ہی سے ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں، ایمان ہی سے ہم ہمیشہ جیتے رہتے ہیں، ایمان ہی سے ہم دنیا پر غلبہ حاصل کرتے ہیں، ایمان ہی کے ہتھیار جب ہمیں ملتے ہیں تو ہم دنیا پر غالب آتے ہیں۔ ایمان میں قائم رہنا اس لیے اشد ضروری ہے۔ ایمان ہی سے ہمیں کیا ملتی ہے جی؟ پاکیزگی ملتی ہے، ایمان ہی سے ہمیں نجات ملتی ہے، ایمان ہی سے ہمیں راست بازی ملتی ہے۔ ایمان ایمان ایمان، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ایماندار شخص جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے کہنے پر چلتا ہے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو بہت سے بھی پوائنٹ ہیں، لیکن میں ابھی غیر ایمانداروں پہ دو ریفرنس کھولوں گا، پھر اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے۔ اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ایماندار ایسا ہونا چاہیے جیسے ابراہم کا، موسیٰ کا، نوح کا، ہنوک کا ہم نے واقعہ پڑھا ہے۔ یہ ایماندار تھے اور کس طرح ہنوک اٹھا لیا گیا، کس طرح نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، کس طرح ابراہم نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا اور خدا کی آواز کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور باتوں کا یقین کیا۔ اس چیز ہم نے پڑھا کہ یہ ایماندار ہیں جنہیں خدا کی پہچان مل جاتی ہے، جنہیں خدا کی حضوری مل جاتی ہے، اور پھر وہ خدا ہی کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جس طرح خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آمین۔ اس لیے اب بے ایمان کا حال کی ہوئے گا، جنہاں کا ایمان نہیں کہ یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع دروازہ ہے، یسوع ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ نکالے ذرا دوسرا کرنتھیوں اس کا 4:4۔ پولس رسول کے نام، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے جی، اس کا باب 4 ہے اور 4 ہی آیت کو ہم پڑھیں گے۔ جی آخر بھائی پڑھیں نا یہ، یعنی ان بے ایمانوں کے، سنیں جی، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت پر ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اس جہاں کے خدا نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، تاکہ جو خدا جلال کا بادشاہ ہے، جو خدا
खुदा खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, जो असली है, जो आला है, जो मोतबर है, जो हमेशा कायम रहने वाला खुदा है, उसकी रोशनी से वो महरूम रह जाए। उस रोशनी से क्या रह जाए जी? महरूम रह जाए। हम उलझ जाते हैं इस दुनिया की चीजों में, तो खुदा से फोकस हमारा हट जाता है। दौलत बुरी नहीं, लेकिन दौलत हमारा फोकस हटाती है। एक्चुअली हम उसकी जमा पूंजी पे लग जाते हैं। वो हम क्लास में सीख रहे थे, एक शख्स के पास ना वो बड़ा खुश रहता था, तो उसके पास जितना कुछ था, जो वो जॉब करता था उसमें वो खुश रहता था। तो बादशाह ने कहा बड़ा खुश रहता है, तो इसको उसने अपने वजीर से कहा कि इसको ना 99 सोने के कॉइन जो है ना, सिक्के जो है ना, वो दे देगा। वो दे देते, उन्हें गिनना शुरू किए। बोला वाह 99, फिर दोबारा गिनो। हाँ जी है ना आर्थर भाई, दोबारा गिनो, 4-5 दफा गिने। ये 99 क्यों है? ये 99 क्यों है? ये 100 क्यों नहीं है? जब 99 उसने सिक्के देखे, सोने के देखे, उसके ज़हन में लालच आया कि अब मैं इनको 100 बनाऊंगा। अब मैं इनको क्या बनाऊंगा? जब दुनिया का लालच आया तो फिर बादशाह ने तो खिड़की तो देखा, तो रोज शेरी को जाना ऐसे कैसे हो गया, कैसे 99 से 100 बनेंगे, कैसे ये ऐसे। वजीर ने बुलाया उन्हें, कहना पहला खुश सी होने खुश कोई नहीं, कहना होने भी 100 के चक्कर च पा गया। अब ये भी 100 के चक्कर में आ गया है कि 99 को मैंने 100 कैसे बनाना है। पहले सुकून में था, अमन में था, जब जो कुछ खुदा ने दिया था उसमें शुक्रगुजार था, उसमें खुदा की शुक्रगुजारी किया करता था। लेकिन जब हम जोर मारते हैं, उलट फुलट काम करते हैं पैसे को कमाने के लिए, हम अपने आप को दांव पे लगाते हैं, अपने आप को बेचते हैं पैसे के लालच में। हम दुनिया की अय्याशी करना चाहते हैं, हम अच्छा नजर आना चाहते हैं, हम दूसरों को कमतर दिखाना चाहते हैं। तो ये तो कोई ईमानदार ना होवे ना, फिर ये ईमानदारी तो ना होना। इसलिए उनका ऐसा ही हाल होगा। निकाले तीतस का खत, निकाले उसका पहला बाब और 15 आयत निकाले जरा। Oh Jesus, बस थोड़ा जा रह गया, हौसला रखो, खाना मिलेगा। डोंट वरी, यहोवा यारी, हालेलुया, वो सब कुछ मुहैया करने वाला है। तीतस का खत है जी, तीतस के नाम पौलुस का खत है, पहले बाब की 15 आयत को पढ़े। पाक लोगों के लिए क्या लिखा है जी? पाक लोगों के, किन के लिए? मेरे साथ रहे, किन के लिए डेविड भाई? पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है। पाक चीजों के, पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं है, बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा है, क्योंकि उनके ज़हन में शैतानी ख्याल है, शैतानी चीजें हैं, अपने आप को बड़ा बनाने की चीजें हैं। मैं उनके अंदर है जी आलूदा है, गुनाह आलूदा है। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, सुनिए गौर से, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं कि हमें खुदा की पहचान है, हम यीशु पर ईमान ले आए, हम यीशु को जानते हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। यही कलाम करें जी। मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अरे कामों से नजर आएगा, हम चलती फिरती अंजील नजर आए, हम चलती फिरती अंजील नजर आए, किरदार से लोग जाने, गुफ्तगू से लोग जाने के खून न खरीदे हुए लोग हैं, इन्हों का फिदिया दिता हुआ है, ये पाक लोग हैं, ये अलग किए हुए लोग हैं। तो अगर भीड़ च ऐसा रहना है, वही झूठ भी, वही लालच ही, वही अपना मैं, तो फिर कौन से फर्जंद, कौन सी पाकीज़गी, कौन सी खुदा की बख्शिश, कौन सी नजात, कौन सी माफी? फिर उनमें और हमें क्या फर्क है? जरा बैलन काटते फिरते, फिर उन जी ऐसे भी, फिर वैसे ही हम भी हैं, फर्क नहीं। फिर भी लिखा है
मगर गुनाहलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका क्या करते हैं जी? इनकार करते हैं। अपने कामों से किससे इनकार होता है जी? वो मुंह तो नहीं कहते नहीं मैं यीशु नहीं मानता, नो नो नो। वो तो चोरी करने भी जाता नहीं, पास सब करने, गुनाह करने भी जाता तो कहता खुदा हुंदा आज मैं कुछ करन जा रहा, तू ही मैंने संभाल के रखना, कोई वेख ना लवे। यही कहते ना भाई, कहते हैं यीशु नहीं आने, वो यीशु ने अपने हिसाब ना सब बनाया है ना कि मेरा यीशु में गलत काम भी करने जा रहा है तो मैंने बचा नहीं हूं। तो बस अफसोस वो अपने कामों से, किनसे जी? और वो होशियार तो बनते हैं कि शायद हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन दुनिया देख रही होती है। ये गलत फहमी होती है इंसान की, क्योंकि शैतान ने, इब्लीस ने अक्ल को क्या कर दिया होता है? बंद कर दिया होता है जी। वो खुदा की पहचान का दावा तो मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो क्या लिखा है जी? मकरू और नाफरमान। अगर पढ़ो तुसी है और किसी नेक काम के काबिल, सारे मेरे नाल को, किसी नेक काम के काबिल, क्योंकि इब्लीस ने उसकी अक्लों को बंद कर दिया है, उस खुदा की पहचान से दूर है, वो मसीह पर ईमान नहीं लाया, वो नहीं जानता कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाजा है। वो नापाकी को पसंद, आमीन, वो नापाकी को पसंद, वो पाक है, वो पाकीज़गी को पसंद करता है। तो इसलिए अपने कामों से, काम हमारे ठीक होने चाहिए, फरमान है, और किसी नेक काम के काबिल नहीं। हमारे किरदार से, रहन सहन से लोग पता लगे कि हम कौन हैं जी? अलग किए हुए लोग हैं। आखिरी पॉइंट, बेईमानी की सजा। और बेईमान जो लोग ने जिन्होंने ईमान रखा, वो बड़े खुश है कि नहीं ईमान रखा था, लेकिन उन्हें सजा मिलेगी जी। खोलिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 12वां बाब और 46वीं आयत। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 12 की 46वीं आयत। आपके भाई प्रेज लॉर्ड। तो उस नौकर का मालिक जी, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा। सुने जी क्या लिखा है, कलाम क्या बता रहा है, सुने जी। वो खुश इस फहमी में है, वो इस खुश फहमी में है कि बड़ा टाइम है, पता नहीं उन्हें कदों होना है, हजे ते अपने काम में मुका लवा। मैंने आपको बताया था ना, एक बहन मैं क्या बहन तौबा कर ले, कहती पासा मैं तौबा तो जरूर करांगी, लेकिन अजय मेरे बड़े कम पैर में, वो तो बिना कर ले। मैं सच कह रहा हूँ, सच्चा बात कह। तो कुछ टाइम गुजरा, मैंने कहा बहन वो काम तेरे मुखे ने कि नहीं मुखे, हो तेरे के हाथ जोड़ना, मैं खुदा दा खादम है, हुण तौबा कर ले, सच्ची खिदमत खुदा दी कर। कहते अजय मेरे कुछ काम अजय बड़े बाकी ने, जो मैं बड़ा कुछ करना है। मैं कहा ओके फाइन, तू फिर इब्लीस दी फरजंद तो इब्लीस को ले रहा हूँ, हुण मैं मेरा जितना काम था मैंने कह दिया, अब मैं बार बार नहीं कह सकता। आमीन। यही इसलिए लिखा है, वो सोचते हैं कि बड़ा टाइम पता नहीं कदों खुदा ने आना है, लेकिन वो लिखा है उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो आ मौजूद होगा। फिर वो भेड़ों और बकरियों को अलग करने के लिए आ रहा है। किनको जी? अभी तो एक ही छत के नीचे, एक ही चर्च के अंदर, एक ही घर के अंदर, एक ही दुनिया के अंदर बेईमान और ईमानदार इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं। अब वो आ रहा है, वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। अब वो भेड़ों को और बकरियों को अलग करने के लिए आ रहा है। भेड़ों से कहेगा मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरे सीधे हाथ आओ, और बकरियों से कहेगा ऐ मलाउनों मेरे उल्टे हाथ आओ। अब वो अलग करने आ रहा है। अब वो क्या करने आ रहा है जी? अलग करने आ रहा है। वो बहुत जल्द आ रहा है। ये गलत फहमी है कि पता नहीं, अरे गलत फहमी वो तो अपने टाइम पर आएगा, वो तो मौका दे रहा है। अगर मेरा ही दम निकल जाए, मैं ही गुनाह में मर जाऊं, तो क्या मौका, वक्त का तो कोई पता नहीं है। इसलिए तौबा कर लेनी चाहिए, जल्दी जल्दी छेती छेती तौबा कर लेनी चाहिए। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है जी? इसलिए जी पढ़िएगा 46 को।
मौजूद होगा खूब कोड़े लगाकर और खूब क्या लगाएगा जी? कोड़े लाने ने खूब क्या लगाने? कोड़े। हम प्यार नहीं करना आ रहा, हम वो अदल और इंसाफ करने आ रहा है। अब वो क्या करने आ रहा है? अदल और इंसाफ। प्यार करने के लिए वो आ गया, अब अदल और इंसाफ के लिए आ रहा जी। खूब कोड़े लगाकर उसे बेईमानों में किना विच जी? बेईमाना च। कहेगा तू बेईमान है, तू बेईमाना च वड़, तू ईमानदार च वड़या फिर वैसे। आमीन। ए ईमानदार च बरूपिया बन के लगा फिर जैसे। यीशु आगे कटेगा हम डंडे मार के। यीशु आगे डंडा फड़ेगा फिर। कोड़े मारेगा। क्या मारेगा जी? कोड़े मारेगा। लिखा यही है जी। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुताबिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। कितनी मार खाएगा जी? कितनी मार खाएगा? फिर दसो मैंने जरा डेविड भाई कितनी मार खाएगा? लिखा बहुत मार खाएगा। कितनी मार खाएगा? बहुत लिखा है लफ्ज, थोड़ा नहीं लिखा। और मारेगा कितना? कोड़े ना। सुनो, अगर हम उस ईमान पर नहीं है, अगर हम सच्चे ईमानदार नहीं है, तो आज वक्त है कि हमें सच्चे ईमान पर खड़े होने की जरूरत है। वो ईमान जो यीशु का ईमान है, वो ईमान जो खुदा का ईमान है, खुदा जैसा ईमान हमारे अंदर होना चाहिए। खुदा जैसा ईमान हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। तो आज अगर हम गाफिल हैं, दूर हैं, खुदा शनासी हमें नहीं, ईमानदार हम नहीं, तो आज हमें ईमान की जरूरत है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि यीशु ने हमारे लिए जान दी है। वो आज भी सलीब पर हमारे लिए कहता है, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी। अगर हम फिर भी गुनाह करते हैं, फिर भी उसके पास नहीं आते, तो हम उसका इनकार करते हैं और उसे बार बार सलीब देते हैं जी। कितों तक छड़िया से तुझा सर? बहुत मार खाएगा। ओह माय गॉड, बहुत मार खाने वाले लोग भी बिच बड़े पैन समझाने समझते नहीं, क्योंकि शरीर ने उनकी अकलों को क्या कर दिया है? समझाने वाले ना तुहानू की पता है, मेरे अंदर तो बड़ी हिकमत है, पता नहीं मैं केड़े केड़े किथों की पढ़ के आ गया। पढ़ाई का बड़ा एक तकलीफ है। ओह माय गॉड, अरे इस किताब को पढ़े, ये जो पढ़ाती है ना, ये असल हिकमत है। इसके अंदर दनाई है, ये आपको राह हक बताएगी, ये आपको सीधी राह बताएगी, ये आपको हिकमत से भरेगी, ये आपको दनाई से भरेगी, ये आपको ईमानदार बनाएगी, ये आपको खुदा की पहचान कराएगी, ये आपको हमेशा की जिंदगी देगी, ये आपको सीधी राह पर लेकर जाएगी। इस किताब को पढ़े और इस पर ईमान ले आए। आमीन आमीन। इसलिए बड़ी मार खानी उन्होंने। हाय हाय हाय। रोमियो 11:20 पढ़ो जरा। आप तो कटो जरा, रोमियो 11:20। ओह जीसस। रोमियो उसका 11वां बाब। अच्छा वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई। सुनो जी क्या लिखा है? अच्छा वो तो बेईमानी के सबब, किसके सबब जी? बेईमानी के सबब तोड़ी गई और तू और ईमान के सबब से कायम है। वो बेईमानी के सबब से क्या कर दी जी? तोड़ी गई, और तू ईमान के बाइस क्या है? कायम है। एक और हवाला आखिरी काट लो, मुकाशफा 21वां बाब उसकी 8वीं आयत। मुकाशफा की किताब है जी, उसका 21वां बाब है, 21वें बाब की आयत नंबर आप निकालें 8। पढ़े आप 8 आयत। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों, सुने जी मुकाशफा की किताब क्या कह रही है? और खूनियों, सुने, कामकारियों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा
आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। मुकश्शफा की किताब हमें बताती है बेईमानों का हाल कैसा होगा। लिखा है मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनोने लोगों और खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का। किनका जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਰਾ ਬਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। Oh my God। लेकिन मगर बुज़दिलों, और खुदा के लोग कभी बुज़दिल नहीं होते। खुदा के लोग दलेर होते हैं। इसलिए खुदा ने कहा रूह कुद्दस का होना जरूरी है, वो तुम्हें दलेर बनाएगा। अरे यहाँ गन भी रखते हैं तो वो कहते हैं यीशु राह है, यीशु हक है, हम यीशु का इनकार करेंगे। बुज़दिलों का काम ही नहीं खुदा का काम करना। अरे वो जोर और लोगों को चुनाव करता है, जोर औरों को चुनता है। लिखा है बुज़दिलों और बेईमानों, बेईमानों का काम ही नहीं, बेईमानों का काम ही नहीं है, ईमानदारों का काम। और गनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा किस में होगा जी? आग और गंधक से जलने वाली वो हमेशा चीरे छाड़ते रहेंगे। पहला तो मारने उन्हें पहला की पढ़िया सा बहुत मारने। पहला की करना जी? सारे मेरे साथ हैं। पहला बॉक्सर की मारने ने पहला ते मार के मारना ते फिर आ चीले सुट देना। फिर आ चीले सुट देना जेडी हमेशा जिथे अग ही लगी रहनी है। आ तुसी इत्थे अग लांदे सुने आगे सुनो हैं भैन जुली, तुसी इत्थे अग लांदे सुन नहीं सुनते, उन्हें आगे सड़ो। हमेशा जो यहाँ आग लगाते हैं उन्होंने चीले सुटना है जिधर फिर आग बुझनी नहीं, जिधर फिर आग बुझती ही नहीं है, हमेशा ये आग जलती रहेगी। लेकिन हम जो ईमानदार हैं, जो उस पर ईमान लाए हैं, अगर कुछ समझाए तो असं उसकी समझ नूं अपने गले ला लेने। वो मेरी अम्मा आंदी सी जेड़ा देवे मत ते झोली लो कत, मतलब झोली में रख लो उसको। हम मत लेते ही नहीं, हम मत को समझते हैं इनू की मांगते, हम अगले उसको कहते हैं इनू की मानते हैं। हम अपने आप को अक्लमंद बनाते हैं, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लिखा है और मगर बुज़दिलों, बेईमानों, गनौने लोगों को और खूनी और हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों, सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है जी। अगर हम दूसरी मौत से, इस मौत से मरना बचना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो फिर हम खुदा पर ईमान ले आए, यीशु पर ईमान ले आए कि यीशु राह है, यीशु हक है, वो अपने वादों का सच्चा है, वो जल्द आ रहा है भेड़ों और बकरियों को अलग करने के लिए, वो जल्द आ रहा है अदल और इंसाफ करने के लिए, वो जल्द आ रहा है हमें लेने के लिए। आमीन। तो आज हमें तैयारी की जरूरत है, अपने आप को तैयार करें। अजय बड़े में आजकल बड़ी रात में प्रैक्टिस की थी, बड़ा लिख के लाया, लेकिन चलें अभी इतना ही आज के लिए। थक गए, मुझे आइडिया है, लेकिन हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा भला है और उसकी शफकत क्या है जी, अबदी है। उसने हमें चुना है, बुलाया है, उसने हमें उठा खड़ा किया है, उसने हमें इस लायक बनाया है, इस काबिल बनाया। और हमेशा दुआ करता हूँ कि खुदा उन जान देने तक वफादार इंज रखी। अगर कितने मैं डोलूँगा तो तू ही संभालना, मैं तो कमज़ोर ही हूँ, मैं तो एम ही हूँ। मैं हमेशा इकरार करता रहता हूँ कि खुदा मैं हर लिहाज से कमज़ोर हूँ, लेकिन तू मेरा जोर है, तू मेरी सिफत है, तू मेरी चट्टान है। तो जब हम ये इकरार करते हैं तो अपना जोर बख्श देता है, वो अपनी कुव्वत बख्श देता है, वो अपने जलाल कर। मेरी दुआ है कि सारी वे ऑफ हेवन चर्च की कलीसिया जो है ऐसी बेदार, ये बाहर भी जानते आसमानी लगन, बाहर जानते लोग शिफा पाए, बाहर जाएं तो लोगों को बरकत मिले, जब गुफ्तगू करें तो लोग कहें बोलते ही रहो चंगा, मैनू लगता मैं तुम्हारी गल सुनता ही रहा। ऐसी गुफ्तगू पुर नमकीन शरी, ये ना कहना नमकीन तो वो क्या होता है, नमक होता है, तो बल्कि नमकीन ज़्यादा अच्छा, लेकिन नमकीन जो है वो मज़ेदार बना देती है। क्या बनाते हैं? टेस्टफुल कर देती है। तो टेस्टफुल करना सर लोगों को, ना कि अनटेस्टफुल करना है। की करना है जैसा लोगों को मसीह की सीरत पे उनको लेकर जाना है, मसीह की खूबियां हम में से नजर आनी चाहिए, हम चलती फिरती अंजीर बन जाए। हमें इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने जो सलीब पर जान दी है, उसने अपने खून से खरीद कर हमें अबदी बादशाहत में हमें दाखिल कर लिया। खुदा आप सबको बरकत दे।